تو اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب ہم اپنے نیکسٹ فیز میں جانے لگے ہیں، وہ کام کرنے لگے ہیں جو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا. تو پہلے تو میں ذرا یہ پرویز صدیق پیچھے سے ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. آواز نہیں آ رہی، بہت شور مچا ہوا ہے. تھوڑا خاموش ہو جائیں. پہلے تو جی میں پرویز صدیق کی حکومت کو جو انہوں نے ریفارمز کیا ہے، جو لوگوں کو امپاور کیا ہے، اداروں کو مضبوط کیا ہے، سروس ڈیلیوری یعنی رائٹ ٹو سروسز ایکٹ پاس کیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا ہے، جو پولیس کو ایک غیر سیاسی کیا ہے. آج میں وہ پڑھ رہا تھا بیان آئی جی سندھ کا. انہوں نے کہا آئی جی سندھ نے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ پولیس کے سامنے ہے کہ وہ غیر سیاسی نہیں ہے، سیاسی مداخلت ہے. یہ آئی جی سندھ کا ہے. تو آج آپ جا کے آئی جی پختونخوا سے پوچھ لیں، ناصر درانی سے، کہ واحد پولیس ہے جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. تو لیکن ہم اب اس سے آگے سٹیپ جانے لگے ہیں. تو میں بتانے لگا ہوں اسکولوں کے اندر میں عاطف خان کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں کہ آج سارے مثالی ہیں ٹیچر اٹینڈنس پہ، مانیٹرنگ میں. اسکولوں کے اندر سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک جو تعلیم کے اوپر زور تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور انڈیپینڈنٹ سرویز آپ دیکھ لیں. اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ تحریک انصاف کام کر گئی ہے، ان کی ہماری کولیشن گورنمنٹ، جو کبھی پہلے نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا سسٹم چینج کیا. موجودہ سسٹم میں کبھی ریفارم ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک چینج لے کے آئے ہیں. بڑی رکاوٹیں ملی، ڈاکٹرز کو پہلے ساتھ لانا پڑا، پھر اسٹے آرڈرز کا مقابلہ کرنا پڑا. ابھی بھی ہیں رکاوٹیں، لیکن انشاءاللہ سارے پاکستان میں مثالی ہسپتال بننے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک نیا سسٹم لے کے آئے ہیں. تو وہ ایک لہدہ، اس کی بھی میں بہت مبارک دیتا ہوں. بلین ٹری سونامی، پہلی دفعہ ایک پارٹی نے ذمہ داری لیا اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے، گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ اب تک 30 کروڑ درخت لگا چکے ہیں. اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے ہماری. اور انشاءاللہ ہم ہماری 1 ارب 20 کروڑ درخت انشاءاللہ 2018 تک ہم لگا لیں گے. یہ بھی ہمارا جو وعدہ ہے، اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ سرویز ہے اس کی، جو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے، ایک انٹرنیشنل این جی او ہے، انہوں نے سروے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 85% سکسیس ریٹ ہے ہمارے درختوں کی. اچھا اب میں آ رہا ہوں، ہاں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ بلڈیٹ کا سروے ہے کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ کرپشن تھی 3 سال پہلے، اور آج سب سے صوبوں میں کم کرپشن ہے آج پختونخوا کے اندر. کوئی جب میں نے کہا 90 دن کے اندر، پلیز ذرا سنیں، 90 دن میں ہم بڑی کرپشن ختم کریں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں بڑی کرپشن، کوئی مجھے بتا دے کوئی بڑا کرپشن کا کیس ہوا ہوگا پختونخوا کے اندر آپ پچھلے 3 سالوں میں، آپ کو نہیں نظر آئے گا. چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. اب میں جو آپ کے سامنے یہ 13 پوائنٹس، جو 13 پوائنٹ کا چارٹر ہے وہ رکھنے لگا ہوں. یہ ہے جو اب ہمارا اگلے، جو کہ انشاءاللہ کوئی اور کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا، کسی صوبے نے نہیں کیا. یہ سارے صوبوں کے لیے مثال بننے جا رہی ہے جو اب میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنے لگا ہوں. 13 پوائنٹ کا چارٹر. سب سے پہلے کہ بلدیاتی نظام جو ہم لے کے آئے ہیں، پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں. اب تک وہ جو امپاورمنٹ ہم چاہتے تھے نیچے تک نہیں پہنچی. اب پرویز صدیق نے امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنا دی ہے، بلدیاتی نمائندوں سے بات بھی ہو گئی ہے. مکمل طور پہ ہم ان کو فائنینشل پاورز دے رہے ہیں، مکمل طور پہ 40 ارب 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. مشرف کے دور میں 1 ارب 60 کروڑ روپیہ بلدیات میں گیا تھا پختونخوا میں. اب 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. تو صبح یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ کسی نے بھی پاور دی ہے نیچے بلدیات میں. نمبر 2، ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں.
नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स भी डिवॉल्व कर दिए नीचे तक। पुलिस का भी नीचे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन गई है पहली दफ़ा कि जो लोकल बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन पे होंगे, पुलिस के ऊपर भी चेक होगा। और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है उसके भी उनकी भी नीचे तक चली गई है पावर्स। ये पहली दफ़ा पावर डिवॉल्व नीचे तक हुई है, जो अब तक 1 साल लगा है हमें। और अब बल्दियाती नुमाइंदे से बैठ के परवेज़ खट्टक ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये पूरे सारे जो मसले रिजॉल्व कर दिए और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में मिसाल बनेगी। और आप खुद ही देख सकेंगे कि सिंध में कितनी पावर गई है नीचे, पंजाब में कितनी गई है और पख्तूनख्वा में कितनी पावर नीचे तक गई है। दूसरा, एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनने हमने फैसला किया, सेटअप करेंगे, जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सेटअप कर लिया है, जो कि जो फंड्स होंगे डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीड्स बेसिस के ऊपर जाएगा, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगी। यानी इसमें कोई ये नहीं होगा कि ये तहरीक इंसाफ की या बल्दियात में जीती है या जो भी, डिस्ट्रिक्ट में नीड बेसिस के ऊपर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नीचे तक वो फैसला करेगी पैसा पहुंचाने की, इसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं होगी। और वो तीसरा यही कि सारे डिस्क्रेशनरी फंड्स खत्म हो रहे हैं अब से, कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशनरी फंड है, वहाँ चीफ मिनिस्टर के हैं, पंजाब में हर सिंध में, पख्तूनख्वा में सारे कोई डिस्क्रेशनरी फंड नहीं रहेगा। ये तीसरी चीज़ है। चौथा, और ये बड़ा मुश्किल है, मैंने अपने एमपीज़ को सारों को बड़ी मुश्किलों से मनवाया इस चीज़ के ऊपर कि अब से कोई डेवलपमेंट फंड एमपीए के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारे बल्दियात काम करने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टली फंड नीचे जाएंगे बल्दियात में, या जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, मिनिस्ट्रीज के जरिए जाएंगे। लेकिन एमपीएस के पास जो सारी दुनिया के अंदर है, जो सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज में है, एमपीएस का काम है कानून साजी। और वो फिर ये भी हम देखेंगे कि वो जो कानून साजी करते हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी एमपीज देखेंगे। लेकिन डेवलपमेंट अब काम बल्दियात में चला जाएगा, ये सबसे बड़ा चेंज है ये। और बदकिस्मती से 1985 से जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में नॉन पार्टी बेसिस में डेवलपमेंट फंड रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किए गए, जिसके ज़रिए लोगों को ख़रीदा गया, सियासतदानों को, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ी सारे पाकिस्तान में। इसलिए ये ख़त्म कर रहे हैं हम, और हम समझते हैं कि ये भी एक सारे सूबों के लिए एक मिसाल बनेगी कि यहाँ हमारे जो एमपीज़ हैं वो कॉन्सनट्रेट करेंगे कानून साजी पे, और जो असल काम है नीचे करने का वो बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे। हमारा अब हम नए कानून आ रहे हैं इस सेशन के अंदर, और इंशाल्लाह जैसे ये सेशन शुरू होता है इसमें सबसे पहला कानून जो आप पास करने लगे हैं वो नया एहतसाब लॉ है। ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर एहतसाब है, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड एहतसाब सेल बनने लगे, जो पहले से था जिसके ऊपर बड़ा शोर बचा कि हमने उसकी पावर्स ली हैं। ये आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, उससे भी ज़्यादा एम्पावर्ड है ये जो नया एहतसाब लॉ इस अब आप पास करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज़ आ रही है जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं आई, विसल ब्लोअर एक्ट। डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग अगर जो भी निशानदेही करेगा करप्शन की एक डिपार्टमेंट में, 25% वो रिकवरी जो होगी वो उसको मिलेगी, और उसकी शनाख्त को हम छुपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, खुफिया रखेंगे, यानी नाम सामने नहीं आने देंगे विसल ब्लोअर्स का। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा करप्शन को फाइट करेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के अंदर सबको पता होता है क्या हो रहा है। तो जो भी निशानदेही करेगा करप्शन की, 25% वो जो भी रिकवरी होगी वो पैसा उसके पास जाएगा। विसल ब्लोअर एक्ट। 8वां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये आ रहा है
ये अब तैयार हो गया लॉ, ये अब हम पास करने लगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको तैयारी में देर लगी क्योंकि कभी पाकिस्तान में ऐसा था नहीं। बड़े हमारे मसले मसाइल हैं कि लोग कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिटिक्स में आते हैं सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिक्स में आए, इक़्तिदार में आए और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। और हमारे सामने, मैं नाम नहीं लेता, आप सब जानते हैं, छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे, इलेक्शन जीत के वो अरबोपति बन गए हैं जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं। और हम सबसे बड़ा मिसाल है शरीफ ख़ानदान की कि इक़्तिदार में आने से पहले एक फैक्ट्री थी, 12 साल इक़्तिदार के बाद 28 फैक्ट्रियाँ उनकी ख़ानदान की होंगी। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसके खिलाफ हम पहली दफ़ा कानून पास करने लगे। उसके बाद एक गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने लगी है, जो कि ये सारा पीछे मकनियाल से लेके सारी गलियात के अंदर एक अथॉरिटी बनेगी जो कि अब चलाएगी। यानी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिलेज होती हैं, देर लगती है, काम नहीं होता, सफाई नहीं होती, ये हम इसी तरह की अथॉरिटीज़ बाकी जगह भी बनाने लगे हैं, कागान में भी बनाने लगे हैं। ये अथॉरिटीज़ बनेंगी, ये चलाएंगी, ये प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लेंगी। ये एक बिल्कुल नए तर्ज होगा कि गवर्नेंस का। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि ये जो गलियात अथॉरिटी होगी सारे फैसले ये करेगी। और इस गलियात अथॉरिटी में मुझे बड़ी खुशी है, मैं ये स्पीकर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारक भी देता हूँ। जो चीफ मिनिस्टर हाउस है रथिया गली में और स्पीकर हाउस है रथिया गली में, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे चला जाएगा इसको। और सारे रेस्ट हाउसेस को पहले भी 5 हम दे चुके हैं, अब ये भी चले जाएंगे, सारे रेस्ट हाउसेस चले जाएंगे। जो इतना ज़्यादा रश जाता है वहाँ, बजाय ये कि करोड़ रुपया खर्च हो टैक्स पेयर का इनके ऊपर, अब से ये रेस्ट हाउसेस जो भी पैसा कमाएंगे वो हम इलाके के ऊपर खर्च करेंगे। तो करोड़ रुपया अब हम कमाएंगे। इसमें मैं फिर से चीफ मिनिस्टर को ख़ासतौर पर मुबारक देता हूँ। आपको पता है हमारे कुर्बानी कोई नहीं देता, इक़्तिदार में आके फिर पूरे फ़ायदे उठाता है। आप देख लें जो बाकी लोग हैं कितने फ़ायदे उठाते हैं। तो ये पब्लिक के लिए अब होगा, इससे पैसा बनाया जाएगा जो पैसा आवाम पे खर्च होगा। और चीफ मिनिस्टर हाउस, ये भी हमारा वादा था कि अब ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस हैं, गवर्नर हाउसेज हैं, इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आएंगे तो उनसे भी यही करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर जो है, इसके अंदर हम इजाज़त देंगे टॉप टैक्स पेयर्स को और टॉप इन्वेस्टर्स को। जो भी बड़ा इन्वेस्टर आएगा उसको मौका होगा कि वो वहाँ जाके ठहर सकता है। और जो भी टॉप टैक्स पेयर होगा सूबे का, उसको मौका देंगे कि वो वहाँ जाके ठहर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो मेहमान बन के वहाँ रह सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं टैक्स पेयर्स को और इन्वेस्टर्स को पख्तूनख्वा के अंदर कि उनको एक प्रिविलेज मिले, बजाय वो कि बजाय बोझ बने एक स्टेट। इनको अभी तक खाली पड़ा था क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहते उसमें, अब वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे बड़े वो लोग जो कि सूबे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इन्वेस्टर्स और टैक्स पेयर्स। ये बहुत बड़ा एक ये मैं बाकियों के लिए कह रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बाकियों में हिम्मत है जो इक़्तिदार में आके बादशाह और मुग़ल आज़म बन जाते हैं। क्या उनमें सादगी का ये है कि पब्लिक के पैसे पे 777 जहाज़ जाता है, वहाँ से करोड़ रुपया खर्च करके तो 25 लोगों को लेके आता है। ये हम साबित कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, सिंबॉलिक है ये कि पब्लिक के टैक्स पेयर के ऊपर हम याशी नहीं करेंगे, हम बल्कि पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सारी हाँ सारी क्लास 5 के ऊपर जितनी भी अब भर्तियां होंगी, ये सुन लें, ये भी बहुत बड़ा इनकलाब है। क्लास 5 के ऊपर जो भी अब भर्ती होगी पख्तूनख्वा में, सारी NTS सिस्टम के ऊपर होगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। 70% इदारों में पहले ही हो रही थी, जो बच गए हैं अब सब के ऊपर NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक होगी। ये नहीं होगा कि कोई इक़्तिदार में आके फ़ायदा उठा के लोगों की भर्तियां करवाए, इसके ऊपर भी लोग पैसा बनाते थे माजी में। हमने फैसला किया कि सब कुछ अब मेरिट के ऊपर होगा। और